وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو 10 کے ساتھ پورا کیا۔ جب بحیرہ کلثم میں فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ دیا، من اور سلوہ کھانے کو دیا اور پینے کے لیے 12 چشمے دے دیے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا کہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں شریعت عطا کروں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے 10 مزید راتوں کے ساتھ ان کو 40 راتیں بنا دیا، اور تیرے رب کا وعدہ جو تھا وہ 40 راتوں میں پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بننا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ کو فکر تھا کہ میری قوم کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے، تو حضرت موسیٰ کو بڑی ہدایات کے ساتھ اپنا جانشین چھوڑ کر گئے۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ وقت کے لیے آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، حضرت موسیٰ کو اتنا مزہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اگر تیرا زیادہ ہی اصرار ہے تو تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ انسان ان آنکھوں کے سامنے فرشتوں تک کو نہیں دیکھ سکتا، کجا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہی حکم ہوا کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب تیرے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا، حضرت وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب ہوش میں آئے تو اللہ سے توبہ کی، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ کس بات کی توبہ کی؟ کہ اللہ میں نے تیرے سے ناجائز مطالبہ کیا تھا، اللہ نے منع بھی کیا تھا،
हजरत मूसा को समझ नहीं आई थी, तो अल्लाह ताला से अब तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे इस बात पर माफ कर दे कि मैंने तुझसे जो मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने कहा है मूसा मैंने तुझे चुन लिया लोगों पर अपने रिसालत के साथ और अपने कलाम के साथ, तो तू पकड़ ले जो मैंने तुझे दिया है और शुक्रगुजारों में से हो जा। और हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों में हर तरह की चीज लिखती थी, नसीहत और हर चीज की तफसील। तो इनको कुव्वत के साथ पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो इस पर अच्छी तरह अमल करें। अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों का घर दिखा दूंगा, यानी ऐसे लोगों की जगहें जो कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी और उनको अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया था। अनकरीब मैं अपनी आयात से उन लोगों को फेर दूंगा जो जमीन में बगैर हक के तकब्बुर करते हैं, और अगर वो हर निशानी देखें तो उस पर ईमान नहीं लाते, और अगर वो भलाई का रास्ता देखें तो उसे रास्ता नहीं बनाते, और अगर वो गुमराही का रास्ता देखें तो उसे रास्ता बना लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर ईमान की तौफीक नहीं होती। ये इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और वो उससे गाफिल थे। और वो लोग जो हमारी आयत को झुठलाते हैं और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते हैं, उनके अमल जाया हो गए। उनको सिर्फ उसी चीज का बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे। और कौम मूसा ने हजरत मूसा के तौरात पर कोहे तूर पर जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया जिसका जिस्म था और उसकी गाय की आवाज निकलती थी। क्या उन्होंने ये न देखा कि वो उनसे कलाम भी न करता था और उन्हें हदायत भी न देता था? उन्होंने उसको अपना माबूद बना लिया और वो जालिम थे। अब जब ये बनी इसराइल फिरौन के मुल्क में रहते थे, वहां भी गाय परस्ती आम थी। इनको जो ही जरा सा मौका मिला हजरत मूसा कोहे तूर पर गए, इनके पास कुछ जेवरात थे, इन्होंने उसे पिघलाया और एक बछड़ा बना लिया और ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब हवा उसके अंदर से गुजरती तो गाय की आवाज निकलती। इन्होंने ये न देखा कि वो बछड़ा इनसे बात नहीं करता था, इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता था, सिर्फ एक आवाज निकलती थी, जैसे सीटी की आवाज। जब हम हवा उसमें दाखिल करते हैं तो सीटी की आवाज निकल आती। तो उन्होंने उसको खुदा बना लिया और वो जालिम थे। तो जब वो शर्मसार हुए और उन्हें समझ आई कि वो गुमराह हो चुके हैं, तो उस वक्त वो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें माफ न किया तो हम तो खसारा पाने वाले हो जाएंगे। इस वाक़े का जिक्र हम पहले सुपारे में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने इनको सजा ये दी थी कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो तो तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो तब फिर इनकी माफी हुई। और जब हजरत मूसा अपनी कौम की तरफ पलटे, गुस्से की हालत में, गम की हालत में, कहा बुरा है जो तुमने मेरी जानशीनी की मेरे बाद। क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और तौरात की तख्तियां फेंक दी, अपने भाई के सर को पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचते थे। हजरत हारून कहने लगे, ए मेरी माँ के बेटे, बेशक कौम ने मुझे कमजोर समझा और वो करीब थे कि मुझे कत्ल कर देते। यानी हजरत हारून ने अपनी सफाई दी, मैंने इनको शिरक से बचाने की कोशिश की थी लेकिन ये मुझे कत्ल करने के करीब थे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने अपने फराइज से कोताही नहीं की। और तो आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दें और मुझे जालिम कौम के साथ ना मिलाइए। अब अगर आप मुझे इस तरह सारों के सामने जलील करेंगे तो दुश्मन मुझ पर हंसेंगे। कहा, ए मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मेरे भाई को भी, और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले, और तू ही सब रहमत करने वालों से ज्यादा रहमत करने वाला है। जब जरा गुस्सा ठंडा हुआ, तौरात की तख्तियां भी उठाई और साथ ही अपने भाई के लिए भी और अपने लिए भी अल्लाह से दुआएं करने लगे। बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़ा पकड़ा था, अनकरीब उन्हें उनके रब की तरफ से गजब पहुंचेगा और जिल्लत पहुंचेगी दुनिया की जिंदगी में भी, और हम उन्हें इसी तरह झूठ करने वालों को सजा दिया करते हैं। और वो लोग जिन्होंने बुरे अमल किए लेकिन तौबा कर ली इसके बाद और ईमान ले आए, तेरा रब तो उसके बाद बख्शने वाला और मेहरबान है। और जब हजरत मूसा का गुस्सा ठंडा हो गया, उन्होंने तख्तियों को उठा लिया और उसके नुस्खों में हदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। ये तख्तियां तौरात की थीं। तौरात अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को
पत्थर की तख्तियों में दी थी जिस पर अल्लाह की आयात तराशी हुई थी, कंधा हुई थी उन तख्तियों के अंदर। और मूसा ने अपनी कौम से 70 आदमी हमारी मुलाकात के लिए, हमारी मुकर्रर करदा वक्त के लिए चुन लिए। तो जब उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ लिया तो हज़रत मूसा कहने लगे, रब मेरे, अगर तू चाहता तो इससे कबल ही हिलाक कर देता और मुझे भी हिलाक कर देता। आपको पता है ये 70 आदमियों ने कहा था, अल्लाह ताला ने इनके सामने कलाम किया तो इन्होंने कहा कि हम तब माने ईमान लन्नो मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपनी इन आंखों से जाहिर न देखें। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा चढ़ा, आसमान से कड़क और बिजली आई और ये लोग बर्बाद होके रह गए। अब जब हजरत मूसा ने देखा कि ये लोग खत्म हो चुके हैं, अल्लाह से दुआएं करने लगे, कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता तो इससे कबल ही हिलाक कर देता और साथ मुझे भी हिलाक कर देता। क्या अल्लाह ताला तो हम सबको हिलाक करता है उसके सबब जो कि हम में से बेवकूफों ने किया। अल्लाह ये तो तेरी आजमाइश है। अल्लाह मेरी कौम तो पहले ही मुझे नहीं छोड़ती, अब अगर ये 70 आदमी जो कि करीम ऑफ द सोसाइटी थे ये भी खत्म हो गए तो अल्लाह ताला मेरी कौम तो मेरी ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने तो मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ये कुछ बेवकूफों की करतूत है, बेवकूफों का काम है। तो अल्लाह ये तेरी आजमाइश है, तो इसके साथ जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हदायत देता है। तू हमारा आका है, अल्लाह हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर दे और तू ही बेहतर बख्शने वाला है और हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत में नेकी लिख दे। ए अल्लाह हम तेरी तरफ हमने रजू कर लिया, हमने तेरी तरफ हदायत हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने कहा, मेरा अजाब मैं उसको पहुंचाऊंगा जिसको मैं चाहूंगा और मेरी रहमत ने हर शय को संभाल लिया है। तो मैं अपनी हजरत मूसा के गिड़गिड़ाने पर और दुआएं करने पर अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों को जिंदा कर दिया और साथ हजरत मूसा से वादा किया कि मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिखूंगा जो कि अल्लाह से डरते हैं, ज़कात देते हैं और मेरी आयात के साथ ईमान लाते हैं। और वो लोग उस रसूल की जो कि नबी उम्मी है उसकी पैरवी करते हैं, जिसको वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। मेरी निजात किन लोगों के लिए होगी? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, उस नबी उम्मी पर जिसका जिक्र तौरात में भी है और इंजील में भी है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, उन्हें बुराइयों से रोकता है, उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करता है और बुरी चीजों को उन पर हराम करता है। उनके वो बोझ उनसे उतारता है, वो तौक उतारता है जो इन पर थे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहूद पर उनकी सरकशी के सबब अल्लाह ताला ने बहुत सी हलाल चीजें हराम कर दी थी। ऐसे ही तौक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने उतार दिए और वो हलाल अशिया फिर हलाल कर दी। इसी तरह वो सख्त अहकामात जो कि बनी इसराइल की सरकशी की वजह से उनको दिए गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में उनको आसान बना दिया गया। तो वो लोग जो उन पर ईमान लाए, उन्होंने उनकी हमायत की और उनकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था। ऐसे ही लोग फला पाएंगे। वो उस कुरान की पैरवी करें, वो उस नबी की पैरवी करें, तो तब ही उन्हें फला मिलेगी। ये अल्लाह ताला ने वादा किया हजरत मूसा के साथ। कह दीजिए ए लोगो, अब अल्लाह ताला दोबारा दावत दे रहे हैं इस्लाम की। कह दीजिए ए लोगो, ए नबी आप फरमा दीजिए, ए लोगो मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सबकी तरफ। कौन सा अल्लाह? जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा भी करता है, मारता भी है। तो उस अल्लाह के साथ ईमान लाओ और उसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह पर ईमान लाता है और उसके कलेमात पर ईमान लाता है। उसकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। नबी उम्मी जो है ये बजाते खुद एक मुइज़्ज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे ना थे, उन्हें न लिखना आता था न पढ़ना आता था। इसके बावजूद दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोग मिलकर भी उन पर कुर्बान हो जाएं तो रसूल नबी उम्मी की जो हदायत है वो इन सब से बढ़कर है। नबी उम्मी अपनी जात में खुद मौजज़ा हैं। उनको किसने पढ़ाया था, किसने सिखाया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने।
तो उस अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके नबी और उसके रसूल पर, उस नबी उम्मी पर जो अल्लाह पर ईमान लाता है और उसके कलिमात पर ईमान लाता है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। और मूसा की कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो कि हदायत के मुताबिक अमल करते हैं और उसी के मुताबिक वो इंसाफ करते हैं। यानी तमाम बनी इसराइल जो थे वो ऐसे नहीं थे जो आप पर ईमान न लाए हों। कुछ चंद लोग जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने के शरफ से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज दिया। और हमने उनको बनी इसराइल के 12 कबीलों में को 12 जमातें बना दिया था। और हमने मूसा को वही की जब उसने अपनी कौम के लिए पानी मांगा कि तू अपना असा पत्थर पर मार, तो उस चट्टान में से 12 चश्मे फूट पड़े। हर शख्स ने अपने पीने की जगह को जान लिया। और हमने उनके ऊपर बादलों का साया किया और हमने उनके ऊपर मन और सलवा उतारा। पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो तो अपनी जानों पर ही जुल्म करते थे। और जब उनसे कहा गया इस बस्ती में आबाद हो जाओ और खाओ जो तुम चाहो, और तुम हित्ततुन कहना और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और अनकरीब हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। फलस्तीन की सरजमीन, इन्होंने जब हिजरत की थी तो इन्होंने अपने आबाई इलाके फलस्तीन की तरफ हिजरत की थी। ये वो इलाका था जहां बनी इसराइल के बाजदाद हजरत अपने इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब रहते थे। अब ये सहराए सीना में उतर आए तो हजरत मूसा ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम उस बस्ती पर हमला कर दो। और वहां की वो बस्ती इंतहाई सरसब्ज और शादाब थी और वहां की नेमतें खाओ। और जब उस बस्ती में दाखिल हो गए तो हित्ततुन कहना और बड़ी आजिज़ी से सजदा करते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और हम एहसान करने वालों को ज्यादा देंगे। तो उन लोगों ने जो जालिम थे उन्होंने वो बात बदल डाली और बजाय हित्ततुन कहने के हिंततुन फी शारतन, हमें गंदुम की बाली चाहिए। और जब दाखिल हुए तो अकड़ते हुए दाखिल हुए तो उन्होंने वो बात बदल दी जो उनको कही गई थी। तो इसके बदले में हमने उन पर आसमान से अजाब उतार दिया क्योंकि वो जुल्म करते थे। और इस अजाब के तौर पर इनको जो सजा दी गई, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने फरमाया बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि शहर के दरवाजे में झुककर दाखिल हों और जबान से हित्ततुन कहें यानी गुनाहों की बख्शिश मांगे, लेकिन वो अपनी सुरीनों के बल घिसटते हुए दाखिल हुए और हित्ततुन की बजाय हब्बतुन फी शारतन, दाना बाली के अंदर कहने लगे। अब सजा के तौर पर इन लोगों ने जब ये अल्फाज बदल दिए तो इन्हें ताउन की वबा ने आ लिया। एक रवायत के मुताबिक इसमें 70,000 यहूदी मर गए। ये खलीज अहमर और खलीज अकबा के पास है। ये वाकया यानी वाकया सब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। हुआ यूं कि बनी इसराइल का एक कबीला समंदर के किनारे रहता था और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस बस्ती का नाम आइला या इलात, ये दोनों नाम रिवायात में आते हैं। तो इस जगह पर आबाद था। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस तरह आजमाइश की कि इनको इन लोगों का पेशा जो था मछलियां पकड़ना था। बनी इसराइल का जो इनकी शरीयत में हफ्ते के दिन की खिलाफ वर्जी पर सजा कत्ल थी। उनके यहाँ ये इतना बड़ा गुनाह था कि हफ्ते वाले दिन अगर ये कोई भी दुनिया का काम करते तो इनको सजा जो थी वो कत्ल की सूरत में मिलती थी। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़नी जारी रखी। अल्लाह ताला ने भी आजमाइश की कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा आती थी, आम दिनों में मछलियां नहीं आती थी। इन्होंने हीला ये किया कि जुमे वाले दिन अपने जाल लगा लेते और गड्ढे खोद लेते। हफ्ते वाले दिन मछलियां तेजी से आती और उनमें फंस जाती। इतवार वाले दिन ये अपने जाल उतार लेते और हीला ये करते कि हमने हफ्ते वाले दिन तो कोई काम नहीं किया, बल्कि ये हमारे जुमे और इतवार की कारगुजारी है। लेकिन चूंकि इससे वो मकसद बहुत होता था, लिहाजा अल्लाह ताला ने सजा दी। जब इनमें से एक जमात ने दूसरी जमात से कहा कि तुम एक कौम को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हिलाक करने वाला है या उनको सख्त अजाब देने वाला है,
تو وہ کہنے لگے تاکہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور شاید کہ وہ لوگ بچ جائیں۔ اس ساحلی بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہی گروہ تھا جس نے ڈٹائی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہ کی لیکن اس خلاف ورزی پر خاموشی اختیار کرتی، خاموشی بھی اختیار کرتی۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں تو نہ پکڑتا تھا اور مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتا بھی تھا۔ اب وہ گروہ جو کہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اس گروہ نے اس گروہ کو جو کہ روکتا بھی تھا اس گروہ سے کہا کہ تم ایک قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو سخت عذاب دینا ہے، انہوں نے تمہارے کہنے سے باز تو آنا نہیں۔ جیسے آج کل ہم بھی بعض اوقات مایوس ہو کر نہیں انل منکر سے رک جاتے ہیں۔ معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں فرق تو کوئی پڑتا نہیں، تو ہم ایسے ہی لوگوں کے سر کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہی صورت وہاں پر تھی کہ اس گروہ نے جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا، اس گروہ نے یہ بات کہی کہ جو خود مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن دوسروں کو روکتا تھا، برے عذاب کے ساتھ اس وجہ سے جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ، اور تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو ان کو برے عذاب پہنچاتا رہے گا۔ یقیناً تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہود کی انہی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ قیامت کے دن تک یہود پر ایسے لوگ مسلط رہیں گے جو کہ ان کو تنگ کرتے رہیں گے، عذاب کے طور پر ایسے لوگ ان پر مسلط رہیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یونانی بادشاہوں نے یہود کو غلام بنایا، کبھی بخت نصر نے مظالم ڈھائے، کبھی مجوسیوں کے ظلم سہے، کبھی مسلمان حکمران ان پر مسلط ہوئے۔ ہٹلر نے زمانہ قریب میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 20ویں صدی کے وسط میں چند حکومتوں کی مدد سے تھوڑے سے علاقہ پر ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی امن نصیب نہیں، اور ہم نے یہود کو زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے بعض تو اچھے ہیں، نیک ہیں، اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ہم نے ان کو اچھائی اور برائی دونوں طریقے سے آزمایا، شاید وہ پلٹ آئیں۔ تو ان کے بعد ان کے برے جانشین ہوئے جو کہ کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس کتاب کے بدلے دنیا کا مال سمیٹنے لگے اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ ہمیں عنقریب معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب بیچ کھانے میں یہ لوگ بڑے بے باک تھے، اور اس کے بعد شیطان نے یہ غلط فہمی بھی ڈال رکھی تھی کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہی بات آج مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں تو بڑے بے باک اور بڑے ڈھیٹ ہیں، لیکن ساتھ ہی شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے کہ تم سید الانبیاء کی امت ہو، جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو۔ کبھی شیطان نے سستی نجات کے عقیدے دلوں میں ڈال دیے، بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جاؤ، بہشت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ تو بیت اللہ کے اپنے گھر کے دروازے کے سلسلے میں بھی نہیں کیا کہ جو بیت اللہ کے دروازے اس کے نیچے سے گزرے گا وہ جنت میں جائے۔ تو ان کے بعد برے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی دنیا کا مال آ جائے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق ہی کہیں گے؟ اور وہ پڑھتے ہیں جو کتاب میں ہے، اور آخرت ہی کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لاد دیا تھا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے خیال کیا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، یہ وہ وقت تھا جب تورات عطا کر دی گئی،
اور 70 آدمیوں کو اس پاداش میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ اس تب بھی مان لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے، اس پاداش میں بجلی گرا کے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ تورات یہود کو جب دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ماحول اس طرح کا بنا دیا کہ کوہ طور ان کے اوپر لٹک آیا۔ ان کو پتا تھا اگر ہم نے اس وقت اللہ کی نافرمانی کی تو پہاڑ کے نیچے پس جائیں گے، اور اگر بھاگے تو پیچھے بحیرہ کلثم ہے، اس میں ڈوب جائیں گے۔ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح لاد دیا تھا گویا کہ وہ صاحبان ہے، اور انہوں نے خیال کیا کہ پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا، تو اس وقت ہم نے ان سے کہا پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، قوت کے ساتھ کیا دے رہے ہیں؟ تورات اور اس کے احکامات، اور یاد رکھنا جو اس میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان